So welcome to all the students. Today we are going to study about various kinds of feminist discourses which are there in India and what is the importance of these feminist discourses. Is it correct to compare the Indian feminist discourses with women's activism, A, and B with the Western forms of feminism? जैसा कि हमें पता है कि फेमिनिज्म 3 waves में शुरू हुआ था. पहला वेव जो फेमिनिज्म का था which started around 1910 1920s, it was about universal suffrage, यानी कि it was talking about the voting rights of the people and especially women, because none of your democratic countries starting from Athens city state to the Roman Republic had women the grant for voting. दूसरा जो movement था of feminism, the second wave, which started in 1960s, it was after Betty Friedan wrote the book The Feminine Mystique in 1963, and that movement was mostly about equal pay, gender rights, rights of women over their own body, reproductive rights, all of it. The third wave of feminism basically then became much more international in nature, and it had the voices of Black women, women from the global South, who were demanding better working conditions, better, safety from gender abuses, gender-based violence, and all of that. आज की क्लास में, because पहले we have studied specifically about the cases of what Betty Friedan has critiqued Sigmund Freud for, and then what Simone de Beauvoir talked about biology and myth. So today we are going to talk about Maitri Chaudhary की जो edited book है about Indian feminism, contemporary issues and that. उसके बारे में हम बात करेंगे, और उसका जो first chapter है जो कमला भसीन और निगात खान ने लिखा है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे. So let us start. I hope you can see the screen. Issues in contemporary Indian feminism. Yes, if anyone is not able to see the screen, please let me know. Okay. So let us start first with the entire aspect of, जैसे 4th December 1829 को sati was abolished in India. Raja Ram Mohan Roy played a pivotal role in abolishing sati, and उन्होंने ब्रह्म समाज भी बनाया था, which was about equality for gender, caste and everything. But at the same time, there was a counter revolution which started against him कि नहीं, this is detrimental to the social fabric of our society. 1856 में राणा डे के कारण विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ. In both these case studies, one thing which is very important to notice is that male from higher elite sections of the society were fighting for women's right. Sir Syed Ahmed Khan was fighting for Muslim women and their rights to study, because उनकी पहली जो टीचर थी जिन्होंने उनको कुरान पढ़ाया था बचपन में, वो एक लेडी थी. So when did women voices start coming in India? कब women खुद अपने मुद्दों के लिए खड़ा होना शुरू की? So as you can see, Tarabai Shinde, she was a Maharashtrian scholar. उन्होंने एक किताब लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना 1882 में, जो इंडिया का पहला फेमिनिस्ट पैम्फलेट था. ताराबाई शिंदे की भी कहानी थी. उन्होंने लिखा कि किस तरीके से हायर ब्राह्मण हिंदू विडोज के साथ अत्याचार होता है, अब्यूज होता है. शी वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सत्य शोधक समाज, जो ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के द्वारा बनाया गया था. उस समय एक केस हुआ था कि देयर वाज अ ब्राह्मण लेडी जो विडो थी, एंड शी was going to be a mother after the passing of her husband. वो इतनी डर गई थी with the entire abuse, और जितना उसकी समाज में अवहेलना होती, वो इतनी डर गई उस चीज से कि उसने अपने जिंदा बच्चे को कुएं में फेंक दिया.
और उसके खिलाफ फिर पुलिस कंप्लेन भी रजिस्टर हुई, बट वेयर वुड शी गो फॉर जस्टिस? तो स्त्री पुरुष तुलना जो है, जो ताराभाई शिंदे ने लिखी थी, शी केम फ्रॉम अ हायर महाराष्ट्रियन कास्ट एंड शी वाज एबल टू राइट. सबसे पहली बात तो मराठी में लिखा गया, फिर इसका हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद हुआ. शी वाज एबल टू राइट इट बिकॉज शी केम फ्रॉम दैट क्लास where women could read, write. ताराभाई शिंदे की जल्दी उम्र में ही शादी हो गई, बट शी हैड अ वेरी लाइक फॉरवर्ड लुकिंग हस्बैंड. और इनके पापा ने, इनके फादर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इनके पढ़ाने लिखाने में. सो शी वॉज वेल एजुकेटेड. स्त्री पुरुष तुलना में उन्होंने जिस तरीके से दो अलग अलग व्यवहार होता है, एक पुरुष का पुरुषों की तरफ और पुरुष का स्त्रियों की तरफ, स्त्रियों का स्त्रियों की तरफ और स्त्रियों का पुरुष की तरफ, और जिस तरीके से ये पूरा एक समाज में एक बाइनरी स्टैब्लिश हो गया है कि एक स्त्री का क्या व्यवहार है और एक पुरुष का क्या व्यवहार है, और दोनों का अगर कंपेयर किया जाए तो व्हाई डिड women only suffer in the past and continue to suffering? And जो भी आपका all these processes, sati or not having widow remarriage, all of it, why was it there at that point of time, was the main question. There was no debate over male bodies and male prestige. तो स्त्री पुरुष तुलना जो इंडिया की सबसे पहले फेमिनिस्ट पैम्फलेट थी 1882 में लिखी गई थी, एंड ये हिंदू ब्राह्मण विडोज के बारे में स्पेसिफिकली केस स्टडीज के द्वारा उस पर फोकस किया गया था. द सेकेंड बुक दैट एक्चुअली केम एज अ बुक 1908 में सुल्ताना's ड्रीम करके आया. रुकैया शिखावत हुसैन, जो बेगम रुकैया जिनको बोला जाता था, शी केम फ्रॉम अ बंगाली, अगेन एन एलीट बंगाली फैमिली, एंड शी is still known as one of the first feminist thinkers of Bengal. वो राइटर थी, एजुकेटर्स थी, प्रोफेसर थी. विमेन एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल एक्टिविज्म, विमेन स्पेसिफिकली मुस्लिम गर्ल्स के लिए उन्होंने काफी किया. तो रुकैया बेगम जो थी, उन्होंने सुल्ताना's ड्रीम लिखी. ना दिस एंटायर बुक वाज अबाउट साइंस फिक्शन. एक ऐसा उन्होंने एक लेडी लैंड करके इमेजिन किया था जिसमें विमेन डिड ऑल द वर्क. एवरी ब्यूरोक्रेटिक, पॉलिटिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, क्विनरी, हर तरीके का काम जो है औरतें करती थी. वो just the role reversal. And she also imagined, flying cars, which are today planes. So she imagined that. And कितनी कम women को एक दिन में सिर्फ 2 घंटा का working hours होगा, because she also made sarcasm कि men most of the time in the 8-hour work schedule spend 6 hours smoking. तो इस तरीके का उनका पूरा ये एक साइंस फिक्शन, एक इमेजिनरी प्लैनेट के बारे में उन्होंने लिखा था. Again, she was able to write in Bangla, or write, which was later, and she knew Hindi and she knew English, again because her husband, who was quite elder to her, was again very forward looking, और उन्होंने उनको काफी पढ़ाई लिखाई में बहुत मदद की थी. तो जो पहला सोशल मूवमेंट्स विमेन एक्टिविज्म का इंडिया में शुरू हुआ था, the first phase of it was through Sir Syed Ahmad Khan, Raja Ram Mohan Roy and MG Rana Day. जो सेकेंड मूवमेंट शुरू हुआ उसमें खुद औरतें आई, बट दे केम ऑब्वियसली फ्रॉम द क्लास ऑफ एलीट क्लासेस, जहां पे दे वेर एजुकेटेड. अंडरस्टैंड कि अभी हम 1822 और 1908 का बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी औरतों को पढ़ाया लिखाया नहीं गया है. तो वो लिख रही थी और अपना फिर पैम्फलेट और किताब छाप रही थी, वो छप रहा था. चीजें आगे बढ़ी. जो फिर उसके बाद थर्ड मूवमेंट ऑफ विमेन्स एक्टिविज्म जो शुरू हुआ, देन इट स्टार्टेड अबाउट women's safety, property rights, reduction of gender pay gap. And towards 2000s, जो अभी जिस फेज में of women's
एक्टिविज्म में हम हैं, फेमिनिज्म में हैं, उसमें you see much more debate about safety of women, safety of women's bodies from any kind of sexual abuse, torture, or any form of discrimination. So जो किताब आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैत्री चौधरी ने एडिट किया है. उसमें कई ऑथर्स के कई सारे फेमिनिस्ट के चैप्टर्स हैं. प्रोफेसर मैत्री चौधरी जो हैं वो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एक स्कूल है, एक डिपार्टमेंट है, वहां से रिटायर की. उनका जो इंटरेस्ट है वो पब्लिक डिस्कोर्स, जो मॉडर्न इंडिया का अलग अलग डिस्कोर्सेज हैं. डिस्कोर्स का मतलब होता है नैरेटिव, कन्वर्सेशंस. तो जिसमें फेमिनिज्म पे इन्होंने बहुत काम किया. स्पेसिफिकली द इम्पैक्ट ऑफ जो 1991 के बाद नियो लिबरलिज्म का शुरुआत हुआ या फिर एलपीजी रिफॉर्म्स का शुरुआत हुआ, तो मैत्रेयी चौधरी ने इसके बारे में काफी काम किया है और काफी लिखा है. इन्होंने ये बुक एडिट की, फेमिनिज्म इन इंडिया. ये 2005 में ये किताब आई और कुछ मुद्दे जो ये किताब डिस्कस करती है. पहला क्वेश्चन ये पूछती है कि व्हाई इज फेमिनिस्ट अ लेबल दैट सम अदर लिबरल इमेंसिपेटेड वुमेन स्टिल रिकॉइल फ्रॉम, that why do a lot of women still do not want to associate themselves with feminism? What is so wrong with that concept? Second, why is it often considered that feminism is associated with women who are very aggressive, who will always try to disturb or disrupt whatever harmonious family structure you have or social norms you have? Why is it the term feminism is seen in a bad light? So this book brings together different kinds of writings and chapters which are written by popular, famous feminist activists of India and Pakistan. And they explore about various kinds of theories which are there in feminism in India. So ये academic context से भी है, activist context से भी है, personal narratives भी हैं, इसमें political narratives भी हैं, international level पे भी है, global और local level पे भी है. और किस तरीके से ये बड़े लिबरल वैल्यूज से जुड़ा हुआ है डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के, इसके बारे में भी ये बात होती है. दिस बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon and it was a very interesting book when it comes to, I thoroughly enjoyed reading few of the chapters and it really made me think a lot. पहली चीज जो इस किताब ने मुझे इस सोचने पे मजबूर किया, जिसको मैंने सोचा नहीं था, was कि जो वेस्टर्न फेमिनिस्ट हैं या वेस्टर्न फेमिनिस्ट थ्योरीज हैं, दे कैन स्टे सिंगुलरली ऑन देयर ओन. जब वो अपनी सोशियोलॉजी या हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं या उसके बारे में बताते हैं, लिखते हैं, दे कैन ट्रेस द हिस्ट्री टू देयर ओन कंट्री. लेकिन जब ग्लोबल साउथ की कंट्रीज या डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वुमेन्स एक्टिविज्म या फिर फेमिनिज्म की बात करती हैं, दे आल्सो ऑलवेज हैव टू गो टू द हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म फ्रॉम द वेस्ट. We cannot afford to overlook Western feminism. The Western strand of feminism can overlook us. This asymmetrical relation was something which I found very interesting इस पर्टिकुलर थ्योरी में. दूसरी चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये लगी इस किताब को पढ़ने के बाद कि it was an amalgamation of a lot of thought process which was there. जैसे आप ट्रांसलेशन की बात करते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स का ये बोलना है कि ट्रांसलेशन इज डबल डिफायंस. डिफायंस मतलब कोई चीज को इनकार करना या फिर उसको नहीं, जैसे आई डिफाई योर ऑर्डर्स, मैं आपकी बात को नहीं मानूंगी. डिफाई करना उसको कहते हैं. तो डबल डिफायंस क्यों ट्रांसलेशन को बोलते हैं? क्योंकि जब आप किसी अंग्रेजी में लिखी हुई भाषा या फिर किसी भी भाषा में कोई चीज को, ऑथर की बात को ट्रांसलेट करते हैं किसी दूसरी भाषा में, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसमें जस्टिस कर पाए, ना तो उसके ओरिजिनल भाषा को समझने में और ना ही जिस भाषा में आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको समझाने में. बहुत सारे शब्द हैं जिनका कोई अंग्रेजी अनुवाद नहीं है, जैसे शब्द है जूठा. देयर इज नो सिंगुलर वर्ड दैट ट्रांसलेट्स टू जूठा इन इंग्लिश. In the same way, there are many words
in English which cannot be easily translated in Hindi or any other language. I was writing a paper on Arab feminism. Arabic में feminism का कोई एक शब्द नहीं है, हिंदी में भी feminism का कोई एक शब्द नहीं है. हाँ, आप उसको ट्रांसलेट करके उसकी मीनिंग को पिरो के शब्द बना सकते हैं, लेकिन शब्द है नहीं. तो this is the politics of language also which is there. तो फेमिनिज्म इन इंडिया जो मैत्री चौधरी ने एडिट किया, इसकी पहली चैप्टर जो है हम पढ़ेंगे, जिसको लिखा है कमला भसीन ने. कमला भसीन को आप लोग सब जानते होंगे. She passed away 1.5 years ago. It was a massive loss to Indian women scholars. इंडिया की डेवलपमेंटल एक्टिविस्ट में इनका सबसे पहले नाम आता है. शी वॉज अ फेमस पोएट, ऑथर, सोशल साइंटिस्ट. 1970s में ही इन्होंने जेंडर एजुकेशन के ऊपर काम करना शुरू किया और मीडिया से रिलेटेड जेंडर एजुकेशन के बारे में काम करना शुरू किया. दिल्ली में वो रहती थी. उनका सबसे फेमस काम था संगत, अ फेमिनिस्ट नेटवर्क, और उनकी खुद की पोएम क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है. In 1995 उन्होंने रिसाइट किया था एक रिफर्बिश्ड फेमिनिस्ट वर्जन ऑफ द पॉपुलर पोएम आजादी, जो हम सब जानते हैं. एंड शी वाज आल्सो द साउथ एशिया कोऑर्डिनेटर ऑफ 1 बिलियन राइजिंग. कमला भसीन का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था, देखा था. शी वाज बीइंग इंटरव्यूड, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कन्वर्सेशन था. शी वाज सेइंग कि जब किसी औरत का रेप होता है तो पूरा परिवार शोक में चला जाता है कि अरे उनकी इज्जत चली गई. The trauma that is suffered by the woman is secondary, but the first thing that is gone is social prestige, izzat. So Kamla Bhasin, which is very, very forward and very liberal for a woman to come and say openly, is question किया कि किसने समाज को बोला कि उस औरत की वजाइना में अपना पूरा इज्जत रखो? किसने बोला? Instead of trauma counseling and helping the survivor, not a victim, but a survivor, the society looks at her as if she was the one who committed the crime. Just because of the visceral act of reproduction or intimacy. And that too, here it is not even by one's own choice when you are raped. It is the violation of human body, objectification of human body, a woman's body. तो कमला भसीन के साथ निगात सईद खान, she is still alive. She is a Pakistani feminist activist researcher. ये US और UK में काफी रही हैं. She is the director and founder of Applied Socio-Economic Research Resource Center और Women's Action Forum की ये फाउंडिंग मेंबर रही हैं. वो डीन ऑफ स्टडीज रही इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन स्टडीज लाहौर में. और जिस तरीके से थ्योरी और प्रैक्टिस या थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत गैप होता है, उसको कम करने का फेमिनिज्म में उन्होंने काम किया. नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल पीस मूवमेंट्स में भी इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और बहुत सारी पब्लिकेशंस इन्होंने की हैं ऑन द क्वेश्चन ऑफ साउथ एशियन वुमेन एंड देयर जेंडर आइडेंटिटी. तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, which is the name of the chapter is Some Questions on Feminism and Its Relevance in South Asia. तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ये ब्रीफ स्क्रूटनी है. In our country, we have suffered for centuries. Women have been the Harijans of our society. हमारे देश में औरतें बहुत सालों से तकलीफ में रही हैं और हरिजन का उनको, Harijan was a term which was coined by Gandhi for Dalit समुदाय, उसकी श्रेणी में रखा जाता है. The speaker goes on in this vein on the theme of women's oppression. A pause and then a strong statement. Then the speaker says, but I'm not a feminist. I'm talking about women's rights, but I'm not a feminist. The speaker could be a woman prime minister. कोई भी हो सकता है वो speaker. कोई प्रोफेशनल हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल वुमेन भी हो सकती हैं, जो शायद बहुत ही ज्यादा टाइम तक एक पुरुष प्रधान समाज में द इनविजिबल ग्लास सीलिंग. ग्लास सीलिंग क्या होता है? हमारी जो सीलिंग होती है वो सीमेंट की होती है, हमें दिखता है कि अच्छा ये हमारा छत है, ये रूफ है. लेकिन जब हम काम करना शुरू करते हैं
या औरतें एजुकेशन के लिए जाती हैं, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडर्स राइट नाउ, औरतें जब एजुकेशन में जाती हैं या एम्प्लॉयमेंट में जाती हैं, धीरे धीरे करके जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, एक के बाद एक स्टेप्स लेने की कोशिश करती हैं, तो अचानक से एक जगह वो फंस जाती हैं, उन्हें दिखता नहीं, वो ऊपर नहीं जा पा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई सीलिंग है ग्लास का जो इनविजिबल है, जो उनको वहां रोके हुए है। दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लास सीलिंग। क्या रीजन है? अभी न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, यूट्यूब की सीईओ ने रिजाइन किया। क्या रीजन है? सो क्यों एक पुरुष प्रधान समाज में औरत हमेशा फाइट करते रहती हैं? वी आर अमेज्ड टू हियर, बट आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। एज इफ कि फेमिनिस्ट होना जैसे कोई गलत बात हो गई। तो फेमिनिस्ट होना होता क्या है? क्या उनका ये बोलना, व्हाट डज इट टेल अबाउट फेमिनिज्म एंड व्हाट डज इट टेल अबाउट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ विमेन्स एक्टिविज्म? वो ऐसे क्यों बोलते हैं? क्या फेमिनिज्म होना गलत है? फेमिनिस्ट होना गलत है? ऐसे स्टेटमेंट सुन के जब भी कोई सोचता है तो वो वंडर करेगा कि क्यों लोग इस चीज को बहुत सीरियसली नहीं लेते, और या फिर उसको गलत तरीके से क्यों लेते हैं। हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि शायद हमने फेमिनिज्म को ठीक से समझा नहीं। इम्बाइब करना या उसको सोक करना या उसके थॉट्स को समझना, वो तो दूर की बात है। क्या हम समझ भी पाए हैं कि फेमिनिज्म कॉन्सेप्ट क्या है? और जो फॉल्स प्रोपेगेंडा चल रहा है फेमिनिज्म के खिलाफ कि अच्छा अगर कोई फेमिनिस्ट है तो, जैसे एक बच्चे ने मुझे बोला कि जब उसका ड्यू में हुआ तो उसके फ्रेंड्स ने बोला कि हाँ आप तो तुम्हारे काफी फेमिनिस्ट फ्रेंड्स बनेंगे जिनके बाल कलर किए रहेंगे अलग अलग स्ट्रीक्स में, और छोटे छोटे कपड़े पहन के वो घूमेंगे। दैट वाज अ स्टीरियोटाइप। द पॉइंट हियर इज कि फिर अचानक से सोशल मीडिया पे फेमिनाजी का कॉन्सेप्ट आ गया कि मान लो जो फेमिनिज्म के बारे में बात कर रहा है, जो जेंडर इक्वालिटी इक्विटी की बात कर ही नहीं कर रहे हैं हम, इक्वालिटी की बात कर रहा है, उसको नाजी एट्रीब्यूट्स दे दिए गए। मीडिया फॉर एग्जांपल, जो मोस्टली पेट्रियार्कल है, कितने ज्यादा विमेन को रिप्रेजेंटेशन है मीडिया में और मीडिया के द्वारा, यानी कि हाउ मेनी विमेन जर्नलिस्ट आर देयर एंड हाउ मेनी विमेन स्टोरीज आर रिपोर्टेड बाय योर मीडिया, बी इट योर ट्रेडिशनल मीडिया में आपका न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, या इवन सोशल मीडिया। How many of them are women entrepreneurs in social media channels? Is a big question. ऐसा क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? Media, for example, जो mostly men are controlling all over the world, बहुत वाइड स्प्रेड मिसइंटरप्रिटेशन किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन भी किया है फेमिनिस्ट का, एज इफ दे आर ब्रा बर्निंग, मैन हेटिंग, पीनस हेटिंग, फैमिली डिस्ट्रॉइंग विमेन। ये प्रोपेगेंडा जो है बहुत रीइंफोर्स होता है एक नेतृत्व से कि आप जिस चीज को इमांसिपेशन और लिबरेशन की बात बोल रहे हो, वो उसी स्टेटस क्वो में जहां पे मेन है उनके लिए वो एक थ्रेट है। और इसीलिए फेमिनिस्ट को हमेशा या तो वेस्टर्नाइज्ड बोल दिया जाता है, नहीं तो रूटलेस। रूटलेस मतलब जो स्थिर ना हो, या मिडिल क्लास बोल दिया जाता है। सो हियर द अटैक इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, nomenclature and all of it. But there is an attack. Why? This is the main question that this chapter is going to ask you.
जब राजा राम मोहन रॉय ने, और ये कोई नई बात नहीं है, जब राजा राम मोहन रॉय ने, राजा राम मोहन रॉय वाज अ पॉलीग्लॉट, उनको बंगाली, उर्दू, फारसी, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे लैंग्वेजेस आते थे। पटना में जाके मदरसा में उन्होंने उर्दू सीखा था। जब उन्होंने ब्रह्म समाज का शुरुआत किया और सती के खिलाफ उन्होंने फाइट करना शुरू किया, तो यू वोंट बिलीव कि कितने सारे लोग उनके खिलाफ थे, दैट ही इज पोल्यूटिंग आवर कल्चर, polluting our culture by trying to abolish sati. क्यों वो चाहे सती को अबॉलिश करना, ऐसा क्या हुआ? इफ यू रीड राजा राम मोहन रॉयज स्टोरी, तो जब वो छोटे थे, 13-14 साल के होंगे, तो एक दिन सुबह जब वो उठे तो देखे कि उनकी भाभी को दुल्हन की तरह सजा के पूरा ज्वेलरी और सारा चीज में उन ले जाया जा रहा है बरामदे से वापस, मतलब घराने के बाहर, और वो पकड़ के रो रही है, चिल्ला रही है। राजा राम मोहन रॉय का भी उन्होंने कुर्ता पकड़ा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। राजा राम मोहन रॉय को नहीं समझ में आया कि क्या हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज माय भाभी सो ड्रेस्ड लाइक अ न्यूली वेड ब्राइड। वो उनको जलाने ले जा रहे थे, उनके भाई का देहांत हो चुका था। दैट वाज अ ट्रॉमा व्हिच मेड हिम फाइट अगेंस्ट सती। उनकी खुद 3 बार शादियां हुई। द फर्स्ट एंड सेकंड वाइफ जो हैं वो पास्ड अवे बिकॉज ऑफ इल हेल्थ। ही फॉट अगेंस्ट एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डाउरी आल्सो। ही केम फ्रॉम अ वेरी elite बंगाली कास्ट फैमिली। बट नो वन नोस कि जब सती अबॉलिश हुआ, देन व्हाट हैपेंड टू राजा राम मोहन रॉय। जो काउंटर रेवोल्यूशन उनके खिलाफ शुरू हुआ, ही वाज कंप्लीटली आइसोलेटेड, ही वेंट इनटू डिप्रेशन। आज भी राजा राम मोहन रॉय की अस्थियां जो हैं ब्रिस्टल यूके में क्रिमेटेड हैं, इंडिया में नहीं। Too much for a man who fought for women's rights. So it is just about women. The point is not that. It is not just about women. It is about women's issues. कि जो भी उनके बारे में बात करता है उसको क्लियर कट डिमार्केट कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर बॉक्स में, कि या तो वो बहुत वेस्टर्न है या रूटलेस है। और ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए भी है। मैं थर्ड जेंडर की तो बात ही नहीं कर रही हूँ अभी। तो फेमिनिज्म होता क्या है? जब भी हम किसी शब्द में इज्म डालते हैं तो वो एक फिनोमेना बनता है। Unlike many other isms, feminism does not derive its theoretical or conceptual base from any single theoretical formulation. There's no single theoretical definition of feminism, what it is. You cannot have one particular abstract theoretical definition of feminism which is applicable for every particular woman of every different country or race or ethnicity, caste or religion. तो इसका ब्यूटी क्या है? The meaning of feminism can change, can evolve. It is fluid. वो कभी भी एनाक्रोनिस्टिक नहीं रहेगा। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है कि कभी किसी चीज किसी समय पे वो शायद अध्याय या किताब लोगों के समझ में आती थी, उस समय के था, लेकिन अब मॉडर्न एज का नहीं है। फेमिनिज्म एक ऐसा नहीं रहेगा। फेमिनिज्म का डेफिनेशन जो है हिस्टोरिकली, कल्चरली, अलग अलग रियलिटीज, अलग अलग कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? ये मेरा बॉडी है, बट हु एम आई, व्हाट एम आई? एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज कॉन्शियसनेस। तो फेमिनिज्म चेंज होते रहेगा हिस्टोरिकली या कल्चरली। इसके परसेप्शंस चेंज होंगे, लोगों के कॉन्शियसनेस चेंज होंगे, एक्शन चेंज होगा। हो सकता है इसका मतलब फेमिनिज्म 17th सेंचुरी में कुछ और मीन करता था, 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में कुछ और मीन करेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। अलग अलग दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग वुमेन के लेवल ऑफ एजुकेशन, कॉन्शियसनेस, ग्राउंड रियलिटी पे वो डिफर करेगा। अगर सेम क्लास की औरतों को भी आप रखें तो उसमें भी डिफर करेगा।
क्योंकि अगर क्लास सेम है, जरूरी नहीं है कि उनकी हिस्ट्री ऑफ क्लास भी सेम हो। पुरुष प्रधान समाज और मेल डोमिनेशन का जो स्ट्रगल है, इसके अलग अलग इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है किसी समय में सिर्फ घूंघट नहीं पहनना या पूरा सिंदूर नहीं लगाना, दैट वाज आल्सो समथिंग कुछ व्हिच कुड बी फेमिनिस्ट। जरूरी नहीं है कि हम प्रोटेस्ट और झंडा लेके ही फेमिनिज्म की बात करें। कभी कभी अपना खुद का लाइफ भी एक रेवोल्यूशन हो सकता है। तो अलग अलग लेवल ऑफ एजुकेशन कॉन्शियसनेस अलग अलग डिबेट्स कैरी करते हैं, लेकिन एक ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म जो दिया गया है, जो बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ एशियन विमेन ने एक्सेप्ट किया है कि फेमिनिज्म इज नथिंग बट एन अवेयरनेस ऑफ विमेन्स अप्रेशन। पहले तो आप अवेयर हो कि आप ऑप्रेस किए जा रहे हैं और एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं सोसाइटी में, काम में भी और अपने फैमिली में भी। अपने फैमिली में कैसे? फैमिली तो आपका इंटीमेट पार्ट होता है, प्राइमरी ग्रुप है। तो डिवीजन ऑफ लेबर फैमिली में मोस्टली डोमेस्टिक चोर्स का विमेन के ऊपर ही क्यों होता है? मोस्टली Why is there no equal division of labor at home? 2-3 साल पहले एक ट्वीट बहुत फेमस हुआ था जो मुझे सोचने पे मजबूर किया। जब बहुत बार प्यार से बच्चे जो है अपने प्रोफेसर्स को हैप्पी मदर्स डे लिखते हैं, बोलते हैं, तो एक अमेरिकन प्रोफेसर ने बोला कि शी डज नॉट लाइक इट। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, इज लाइक बच्चा प्यार से बोला है हैप्पी मदर्स डे, तो मतलब बिकॉज दैट चाइल्ड लुक्स एट देयर प्रोफेसर और टीचर एज अ मदर, तो इसीलिए वो बोला है। इसमें पसंद नहीं आने की क्या बात? बट देन द प्रोफेसर सेड इन डिफेंस कि पढ़ाने में भी दो तरीके का लेबर होता है। एक होता है आपका खुद का इंटेलेक्चुअल फिजिकल लेबर, कि आप जा रहे हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके लिए पहले पढ़ रहे हैं, अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑल ऑफ इट फॉर विच यू आर गेटिंग पेड। द सेकेंड इज इमोशनल लेबर। Emotional labor is basically expected out of women naturally. कि अच्छा, they will be much more affectionate, they'll be much more caring, they'll be much more understanding to students. क्यों कोई फादर्स डे विश नहीं करता है अपने मेल प्रोफेसर को? Why don't men have that same level of emotional labor in any university, school? Why? That point made sense. तो पहले तो आप ये समझिए कि वर्क में भी आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जब मिशेल फूको जो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जब भी आपका जहाँ पे आप काम करते हैं वो आपका परिवार नहीं है, जहाँ पे भी आप काम करते हैं वो परिवार नहीं है। सबसे बड़ा व्हेन ही वाज ट्राइंग टू से कि पहले का जो जमाना था जब लोगों को टॉर्चर करके मार दिया जाता था, वो स्टिल बेटर देन आज के जमाने में। तो लोगों ने पूछा कि क्यों, ऐसे क्यों, व्हाई आर यू सेइंग? वो तो काफी बारबेरिक अनसिविलाइज्ड था। तो उन्होंने बोला कि उस समय एटलीस्ट ये तो पता था ना कि पावर अथॉरिटी क्या है। जब आप वर्क प्लेस को परिवार कहेंगे या फिर वर्क प्लेस को ही आप एक फैमिली का दर्जा देंगे, तो फैमिली में तो पावर हायरार्की बहुत क्लियर होती भी नहीं है, और प्यार और इमोशन के नाम पे बहुत सारा लेबर एग्जीक्यूट होता है। तो वर्क में भी विमेन के साथ होता है, ग्लास सीलिंग है। कुछ तो रीजन है कि सुजन वजोस्की, हु इज द सीईओ ऑफ यूट्यूब, रिजाइंड। कुछ तो रीजन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड रिजाइंड। क्या रीजन है हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही आई वुड कॉल इट बारबेरिक एक आर्टिकल आया था कि कैन वुमेन रियली हैव इट ऑल। जब जसिंदा ने रिजाइन किया था,
Why this debate? So पहले तो आप अवेयर हो। फेमिनिज्म का मतलब है कि पहले तो आप अवेयर हो कि आप ऑप्रेस हो रहे हो, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं सोसाइटी में, अपने वर्क में और अपने परिवार में, और तब आप एक कॉन्शियस एक्शन लें। ये कोई औरत भी ले सकती है, कोई मर्द भी ले सकता है कि इस सिचुएशन को आप बदलेंगे, अपने लेवल से शुरू करेंगे। According to this definition, anyone who recognizes the existence of sexism, कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, मेल डोमिनेशन जो हो रहा है या पेट्रियार्की जो हो रही है, वो गलत है और उसके खिलाफ वो कुछ एक्शन लेंगे, दैट पर्सन इज अ फेमिनिस्ट। बट एट द सेम टाइम recognizing sexism is not enough. It has to challenge male domination also. You have to take steps, little steps, to challenge it in your own ways wherever you can. मैं अपने स्टूडेंट्स को मोस्टली बोलती हूँ कि अगर आप एक गर्ल्स कॉलेज में हैं, देन यू विल नेवर नो व्हाट इट इज टू बी अ वुमन। आप कोएड में जाएंगे तब समझ में आएगा, या फिर किसी बस में जाएंगे जहाँ पे पीपल आर पुलिंग, एल्बोइंग यू, पुशिंग यू, फीलिंग योर बॉडी इनअप्रोप्रिएटली, यू आर फीलिंग वायलेटेड, देन यू विल अंडरस्टैंड. In the same way, you cannot really understand what it means to be an Indian when you're in India. When you'll go outside of India, and then you will see the gaze and how you are looked at, you'll understand what it is to, what is racism, what is to be an Indian. अगर कोई औरत ये डिसीजन लेती है कि वो ह्यूमिलिएट नहीं होगी, अपने आप को एजुकेट करेगी, अपना करियर परस्यू करेगी, वो पर्दा नहीं लगाएगी या पर्दा लगाएगी, वट एवर इट इज, वो हिजाब पहने या हिजाब नहीं पहने, उसका चॉइस है, उसके डिसीजन की। वो बच्चा करेगी, वो बच्चा नहीं करेगी, वो गोद लेगी, वो सरगसी करेगी, वो उसका चॉइस है। सोसाइटी का इंडोक्ट्रिनेशन नहीं होना चाहिए, ये ही एक स्ट्रगल है। आपको किसी ग्रुप में होने की जरूरत नहीं है अगर आप फेमिनिस्ट बनना चाहते हैं, बस इस अवेयरनेस का जरूरत है समझना। सबसे पहला डिफरेंस जो पहले की फेमिनिस्ट और आज के में है, was पहले द स्ट्रगल was फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर women. डेमोक्रेटिक राइट्स तो अभी भी बहुत सारी जगह पे नहीं, जैसे क्रिमेशन में विमेन नहीं होती हैं, प्रीस्ट में विमेन नहीं शादी करवाती हैं, बहुत सारी जगह पे अभी भी नहीं है। पहले था, इट वाज द राइट टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, आप प्रॉपर्टी ओन करें, राइट टू वोट, राइट टू एंटर पार्लियामेंट, राइट टू हैव बर्थ कंट्रोल, राइट टू ऑल्सो हैव अ डिवोर्स। अभी बोला जाता है कि अच्छा, द रेट ऑफ डिवोर्सेस हैव इंक्रीज्ड इन इंडिया because a lot of women are not pursuing the career. Then there was an immediate study which was done, how many women are actually employed and pursuing their career. It was not the same data, it was not supplementing or complementing each other. Women employment is still low. Divorce is still a trauma and loss of social prestige more for a woman than for a man. पहले की अर्लियर फेमिनिस्ट जो है लीगल रिफॉर्म के लिए, लीगल पोजीशन के लिए फाइट करती थी। आज की फेमिनिस्ट जो है लीगल रिफॉर्म से ज्यादा दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, की सबऑर्डिनेशन के खिलाफ आवाज उठाएंगे, वो घर में हो या घर के बाहर हो, लोअर स्टेटस ऑफ वर्क हो सोसाइटी में, आपके कल्चर से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड कोई भी चीज में आवाज उठाएंगे। क्यों आपका प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन दोनों का बरियर, एक आपका एक पूरा बैगेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन अ वर्किंग वुमन, शी हैज, उसका रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कितना स्ट्रांग होगा, शी हैज टू बी अ गुड वाइफ, गुड मदर एंड अ गुड एम्प्लॉई। शी शुड हैव मैटरनिटी लीव, does she really get it? She should have the same kind of gender, the payment as a husband, does she get it? There's something called as
मिल्क शेमिंग, जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है और डिलीवरी के बाद उसके ब्रेस्ट से ऑटोमेटिकली मिल्क आना शुरू हो जाता है बच्चे के लिए, और बच्चे को वही चाहिए एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जो औरतों को दूध नहीं निकलता है उनको, उनके साथ एक चीज होती है कॉल्ड एज मिल्क शेमिंग, कि भाई तुम्हारी बॉडी इतनी नाजुक क्यों है, इतनी कमजोर क्यों है, तुम दूध नहीं निकाल पा रहे हो। दैट ऑल्सो हैपेंस मोस्टली बाय वुमेन फॉर अदर वुमेन, ये भी होता है। तो प्रोडक्शन का तो बर्डन है ही, प्रोडक्शन मतलब कि फॉर्मल इकोनॉमी या इनफॉर्मल इकोनॉमी में जाके काम करो। रिप्रोडक्शन का भी बर्डन है, अरे इतने साल हो गए शादी के, बच्चे नहीं हुए। तो फेमिनिज्म जो है ये चेंज करता है द आइडिया ऑफ फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी ऑल्सो। क्यों फेमिनिन होना, व्हाई इज इट की सॉफ्ट स्पोकन वेरी जेंटल एलिगेंट होना ही है, और मैस्कुलिन होना एकदम। So why these kinds of notions are started by society? Thus feminists see women have to not only fight against discrimination, लेकिन अपने liberation के लिए भी बात करना। अब liberation का मतलब जो women liberated हैं तो वो अय्याशी करती हैं is also the wrong idea, because that is also a propaganda. Propaganda का concept जो है, जोसेफ गॉबल्स ने, नाजी मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा थे वो हिटलर के दौरान, उन्होंने बोला था कि एक ही लाई को तुम 1000 बार बोलो तो फिर फाइनली लोग उसको सच समझ जाते हैं। दैट इज प्रोपेगेंडा। हर तरीके का ऑपरेशन किसी स्टेट में, सोसाइटी में, बाय मेन बाय वुमेन आल्सो, पेट्रियार्की इज नॉट जस्ट बाय मेन। वुमेन आर ऑफन विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, अनइक्वल पे, लोअर वेजेस। ठीक है, सरकारी नौकरी में 7th पे कमीशन के बाद एक ही जॉब करने के लिए एक मेल फीमेल दोनों को सेम सैलरी मिल रहा है। बट माय क्वेश्चन इज कि इंडिया जैसे कंट्री में 14% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन फॉर्मल इकोनॉमी, ओनली 14%। बाकी के इनफॉर्मल इकोनॉमी में है, आपके सब्जी वाला, ठेले वाला, पान वाला, ड्राइवर, ऑटो वाला, ई रिक्शा वाला, मेड, सर्वेंट, कुक, इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल इकोनॉमी में जेंडर पे गैप जो होता है, मजदूरी में भी जो औरत मजदूरी करती है और जो आदमी मजदूरी करता है, दोनों के सैलरी में डिफरेंस होता है, दिहाड़ी में डिफरेंस होता है एक ही दिन के। और किसने कहा कि वायलेंस सिर्फ बॉडी के ऊपर वायलेंस होता है? वायलेंस इज ऑल्सो मेंटल एंड ट्रोमैटिक। वर्ड्स ऑल्सो हैव वायलेंस। So we have to also initiate, if you want to be a feminist, you have to first understand the awareness. I'm saying understand the awareness. अवेयरनेस को भी अंडरस्टैंड करो, क्योंकि समय के साथ बदलेगा वो। अंडरस्टैंड द अवेयरनेस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ नुएंसेस ऑफ योर ओन ऑपरेशन एंड द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर लिमिटिंग इट। प्रेजेंट डे फेमिनिज्म जो है, विमेन्स इक्वालिटी, इक्विटी, डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ चॉइस, कंट्रोल, उनके बॉडी, उनके लाइफ्स के बारे में है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। लेकिन सिर्फ इक्वालिटी मांगना विथ मेन, दैट इज नॉट इनफ। For example, it does not take a peasant woman very far, even if she becomes equal to a peasant man. कोई दलित आदमी है और कोई दलित औरत है, दलित औरत चाहेगी कि वह अपने आदमी या फिर दलित आदमी के कंपैरिजन में इक्वल हो जाए, लेकिन दैट विल नॉट टेक हर फार। हैं तो अभी भी एक्सप्लॉइटेड इन द दलित कम्युनिटी, नो। इसीलिए इट इज अबाउट इक्विटेबल सोसाइटी, इक्विटी। जिस इंसान को जितनी जरूरत है उसकी उतनी जन कल्याण होनी चाहिए। जरूरत ऐसी नहीं जो फेक हो, जरूरत जो एक्चुअली हिस्ट्री के हिसाब से, उसके इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से हो। इक्विटी की जरूरत है। Isn't feminism then a Western notion and quite irrelevant in South Asia? बहुत सारे
जगह पे बहुत सारे, क्योंकि मेरे एरिया स्टडीज वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट है, तो जब मैं इजिप्शियन फेमिनिज्म के बारे में बात करती हूँ तो मोस्टली द क्वेश्चन इज की वेस्टर्न, वहां पे भी वो बोलते हैं कि फेमिनिज्म इज एन इम्पोर्टेड कॉन्सेप्ट, बाहर से लाया गया। यहाँ पे ये बोल रही हैं कमला बसीन और निगात खान की ये क्वेश्चन की तरह पूछा नहीं जाता, ये हमेशा एक स्टेटमेंट की तरह बोला जाता है, एक एलिगेशन दिया जाता है एज एन अटैक, एज अ फैक्ट, इसीलिए उनको उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। ये आदमी और औरतों दोनों द्वारा होता है, जो खुद शायद वेस्टर्नाइज्ड हों, खुद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हों, खुद इलीट इंग्लिश ड्रेसिंग कर रहे हों, लेकिन they will still question it, often by stating कि genetically they will also borrow biology, and they'll say कि genetically a woman's body, the way it has been made, it is for reproduction. One can be a feminist and reproduce also, by the way. So the same people who question feminism, ये कभी किसी पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स ऑफ डेमोक्रेसी को क्वेश्चन नहीं करते, जो भी वेस्टर्न है। कैपिटलिज्म को क्वेश्चन नहीं करते, जो भी वेस्टर्न है। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपका खुद का एसेट्स, उसको क्वेश्चन नहीं करते, जो भी वेस्टर्न आइडिया है। द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी, उसको क्वेश्चन नहीं करते, और जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी है या राइट की आइडियोलॉजी है उसको भी क्वेश्चन नहीं करते। बट जस्ट बिकॉज ये फेमिनिज्म शब्द साउथ एशिया का नहीं है, तो साउथ एशिया का तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी नहीं है, मार्क्सिज्म भी नहीं है, सोशलिज्म भी नहीं है, बहुत सारे धर्म भी नहीं है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, वे born in Palestine, Jerusalem, Philistine. Judaism, the oldest religion of the world, again born there. Then came Christianity. I have been to Bethlehem where Christ was born. Where is it? It's in West Bank, Palestine. Islam. Prophet Muhammad, who was a military leader, administrator, and a religious preacher. Unka hijra Makkah se Medina. Where is it? Saudi Arabia. So all of them are not South Asian religions per se. Einstein was not born in Lahore. Karl Marx was not born in Calcutta. Lenin was not born in Dhaka. Adam Smith was not born the father of capitalism. He was born in Scotland. But we live in a capitalistic society. इसको critique क्यों नहीं करते हैं? Yet, just because they were not South Asian, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी आइडिया हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, बिल्कुल रेलिवेंट है। आइंस्टाइन को भी पढ़ते हैं, लेनिन को भी पढ़ते हैं, मार्क्स को भी पढ़ते हैं। तो फेमिनिज्म को क्यों नहीं पढ़े? जस्ट बिकॉज इट इज एन इम्पोर्टेड कंसेप्ट तो वो इरेलीवेंट हो जाएगा। कब से ज्योग्राफिक बाउंड्रीज डिफाइन करने लगी किसी भी चीज की यूटिलिटी को? ठीक है, चलो मान लेते हैं कि जो फेमिनिज्म टर्म है दैट माइट बी फॉरेन, द कॉन्सेप्ट अगेन इज ट्रांसफॉर्मेशनल, इट इज एवोल्यूशनरी। जो इंडिया में भी स्टार्ट हुआ था, इनफैक्ट साउथ एशिया में शुरू हुआ था 19th सेंचुरी में, विमेन सबऑर्डिनेशन के खिलाफ शुरू हुआ था। यहाँ पे आर्टिफिशियली इम्पोज नहीं किया गया था, जैसे कोलोनियलिज्म और कैपिटलिज्म आर्टिफिशियली इम्पोज किया गया था यूके द्वारा। कोई फॉरेन आइडियोलॉजी नहीं था सती के खिलाफ फाइट करना। It was a need of the hour. It should have happened before 4th December 1829. Widow remarriage should have been passed before 1856. Feminism and feminist struggles एशिया में अराइज किए जब वहां पे ये कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डेवलप किया अबाउट कि बेसिक राइट्स का ही इनजस्टिस है। और ये
पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस से बहुत जुड़ा हुआ है. वी ऑल टॉक अबाउट दांडी मार्च कि अप्रैल 1930 में गांधी स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम, वॉक टुवर्ड्स दांडी, सॉल्ट मार्च था, सॉल्ट लॉ के खिलाफ डिफाई किया था. सो मेनी, ही स्टार्टेड विद द हरिजन्स ऑफ साबरमती आश्रम. सो फेमस, सो फेमस. बट नो वन नोस कि जब गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, नेहरू को अरेस्ट कर लिया गया 1930 में, देन देयर वाज अ सेकंड सॉल्ट मार्च जिसकी लीडर सरोजनी नायडू थी और 20,000 लोगों ने उसको फॉलो किया था. दैट वाज द सेकंड सॉल्ट मार्च ऑफ इंडिया. सरोजनी नायडू का बर्थडे 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. दैट इज द नेशनल वुमेन्स डे ऑफ इंडिया. वी डोंट नो. So the voices against women's subordination have to be raised. Women have the right, and they had the right, to question polygamy, to question the practice of sati, parda, if they want to. Question the right for education, legal emancipation, and all of it. Next question is, were there debates in Asia about women's position in society before colonialism? यानी मुगल टाइम पे या उससे पहले? Yes, the answer is. For example, the issue of whether women could join the order and become nuns, बुद्धा के टाइम पे भी डिबेट किया गया था, which was 6th century BC. Could women become Buddhist monks? Was a question of debate. बहुत सारे सोसाइटीज में विमेन्स एजुकेशन को लेके डिबेट चलता रहा. चाइनीज स्कॉलर जो 18th सेंचुरी के थे, चेन हुंगमो, उन्होंने लिखा था विमेन्स एजुकेशन पे बिफोर द फेमस फेमिनिस्ट मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट डिड. He said, there is no one in the world who is not educatable. Like, सबको आप पढ़ा सकते हो. And there is no one whom we can afford not to educate. ऐसा कोई नहीं है जिसको हम अफोर्ड कर सकें कि इसको नहीं पढ़ाएंगे. Why neglect girls in this regard? जैसे ही वो इन्फेंसी को छोड़ती हैं, प्यूबर्टी पे मतलब बड़ी होती हैं, फिर प्यूबर्टी को आती हैं, they are always raised and protected in the women's quarters. Why are they not allowed to go out? Why cannot they follow an outside teacher, friends? When they grow older, they are taught to embroider, prepare for dowries, and that is all. हमारे भी स्कूल में SUPW नाम का सब्जेक्ट होता था जिसमें हमें हैंकरचीफ पे एम्ब्रॉयडरी करना सिखाया जाता था, पेंटिंग कराना सिखाया जाता था, आर्ट एंड कल्चर सिखाया जाता था. माय क्वेश्चन इज कि क्यों हमें SUPW में कभी किक बॉक्सिंग नहीं सिखाया? ऑप्शन ही नहीं था. कभी किक बॉक्सिंग भी सिखाते, मजा आता. तो दिस इज द पॉइंट. ये 18th सेंचुरी में क्वेश्चन किया गया है. मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट वाज वन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट राइटर्स. आई जस्ट नो. So the point is that why are they taught कि जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा ने एक 5 मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया था व्हिच वाज कि टॉडलर्स को, मेल और फीमेल टॉडलर्स को कपड़े जो हैं एक्सचेंज करके पहना दिए. लड़कों को लड़कियों का ड्रेस बना दिया क्यूट क्यूट, और लड़कियों को लड़कों का. और फिर एक केस जो ग्रुप है, एक सैंपल को उनके साथ छोड़ दिया गया. तो
लड़कियों को लड़के बच्चों को लड़कियां समझा गया, लड़की बच्चों को लड़का समझा गया है, वो बच्चे थे 1 साल के। अब लगे हैं सब लोग कि जो लड़का वाला ड्रेस पहना हुआ है उसको जीआई जो से खिला रहे हैं, प्लेन से खिला रहे हैं, ट्रैक्टर से खिला रहे हैं, बच्चा खेल भी रहा है। और जो लड़की का ड्रेस पहना हुआ है उसको बार्बी डॉल से खिला रहे हैं और बच्चा खेल भी रहा है। जब एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, देन दे सेड कि डू यू नो दैट इवन द टॉयज व्हिच आर देयर, दे आर आल्सो सेक्सिस्ट। बच्चा तो खेला ना आपके साथ जब आपने उसको किसी भी टॉय के साथ खिलाया। एंड देन दे सेड कि आप जो इस बच्चे को लड़की समझ रहे हो वो एक्चुअली लड़का है, एंड वाइस वर्सा। सो दैट इज द पॉइंट कि कॉलोनियलिज्म से पहले भी डिबेट्स थे और उसके बाद भी रहे। तो इन शॉर्ट, जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, व्हाट वी डिस्कस टुडे वाज, हम लोगों ने मैत्री चौधरी की इस किताब के बारे में डिस्कस किया, व्हिच इज फेमिनिज्म इन इंडिया, इश्यूज इन कंटेम्पररी इंडियन फेमिनिज्म। ये जो ऐसे था, जो पहला चैप्टर मैंने आपसे डिस्कस किया, ये कमला भसीन ने लिखा था। किसके साथ? निगात सईद खान के साथ, हु इज अ पाकिस्तानी स्कॉलर। एंड उन्होंने क्वेश्चंस किया था, द नेम ऑफ द चैप्टर इज इटसेल्फ क्वेश्चंस ऑन फेमिनिज्म, कि फेमिनिज्म है क्या, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अवेयरनेस ऑफ फेमिनिज्म होता क्यों है, लोग व्हाई women who are activists they also do not want to see themselves as feminist, इस मुद्दे पे पहुंचने की कोशिश की। उसके बाद, क्या ये वेस्टर्न इंपोर्टेड कॉन्सेप्ट है, अगर है भी तो इसमें गलत क्या है, क्योंकि वेस्टर्न इंपोर्टेड कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं। एंड देन फेमिनिज्म का डिस्कशन, डेफिनेशन, साउथ एशिया कैसे लेता है, और किस तरीके से इमेंसिपेशन इंपॉर्टेंट है, कैसे एक्शंस लेना इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने आज के क्लास में पढ़ा। So thank you all of you for your presence for today.